to speak today. There are few guidelines to follow during the sadhana period, like try to eat pure, shuddh, sattvic food during your sadhana period, this 7 days period. Eat pure, shuddh, sattvic food and try to have only 2 meals a day if possible for you. And do not talk while eating. Eat according to your age and activity. If you are doing a lot of physical activity, you can eat little bit. But if you are not doing so much physical activity, try to eat less. At least 2 times a day is enough, but the quantity should be less. Your mind and body function always best on empty stomach. So, but if you feel hungry, you can drink, honey lemon juice, seasonal fresh fruit juice. You must drink lukewarm water early in the morning so that you can, clean yourself, as cleansing is very important part of the sadhana, as Guruji yesterday elaborated all these things to you. And avoid tamasic food like smoking, consuming alcohol, eating non-vegetarian food and fried food, etc. Wake up early in the morning, as you have to wake up at least 5 a.m. in the morning, because we are joining here at 6 a.m. for sadhana, and start sleeping early by 10 p.m. if possible for you all. Keep quiet as much as possible and avoid also entertainment during of sadhana period. One more thing which I would like to add here. Ladies can do Mahashivratri sadhana during their menstrual period, and who cannot sit on the ground, they can meditate using pillow or chair something. So that's all what I have to speak on. Now our Panditji, respected Shambhu Prasad Mishra ji, is here, who will start the rituals and the pujas and then the mantra jap of Mahamrityunjay mantra. I hope you are having your mala, either Rudraksh or Tulsi mala with you all, so that you can chant the Mahamrityunjay mantra. तो अब मैं हमारे आज के जो आचार्य हैं शंभू प्रसाद मिश्रा जी, उनसे अनुरोध करता हूं कि विधिवत रूप से सर्वप्रथम महाशिवरात्रि की पूजा करवाई जाए, और तत्पश्चात आज हम रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करेंगे. टुडे वी विल चांट द 16 श्लोकास, 16 mantras of chapter 5 of Rudra Ashtadhyayi, and Acharya Shambhu Prasad Mishra ji will help us in following the mantra and following the shlokas. So now I will request our Acharya ji, Shambhu Prasad Mishra ji, for the same. Shambhu ji. Om Paramatmane Namaha. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः. आप सभी का ऋतान्वेषी फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं. और आज इस महाशिवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर, क्योंकि आज से हम पूजन का जो क्रम है प्रथम दिवस का, यह हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं. शिवरात्रि का आज से ही हम जो है प्रारंभ, पूजन से ही हम प्रारंभ करेंगे. तो सर्वप्रथम हमें जो है ध्यान मुद्रा में रहना है और अपना जो भी
कर्म हम पूजन में कर रहे हैं, जो भी कर्म हमारे द्वारा पूजन में किया जा रहा है, वह संपूर्ण कर्म भगवान शंकर के लिए समर्पित हो, यह हमारी भावना, हमारे अपने मन की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा एक जो संकल्प है वह पूर्ण हो। मनसा वाचा कर्मणा भी कहा गया है, गुरुजी के उपदेशों में भी इन बातों को सुनने में मिलता है। तो सर्वप्रथम जो है शुद्धिकरण का विधान है कि हम कोई भी पूजन जब हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें शुद्धिकरण का होना बहुत आवश्यक है। तो रोशन जी, आवाज आ रही है? जी शंभू जी, आवाज स्पष्ट है, आप कराएं, धन्यवाद। ओके ओके, ठीक है। तो शुद्धिकरण में सर्वप्रथम हम अपने आत्मिक शुद्धि, बाह्यिक शुद्धि को जो है सर्वप्रथम किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले शुद्धिकरण का मंत्रों के द्वारा हम अपने ही स्थान पर, जहां जहां पर आप बैठे हुए हैं, वहीं पर जो है आप जल से शुद्धिकरण करेंगे। ओम हरि ओम। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्ष पुनातु, पुण्डरीकाक्ष पुनातु, पुण्डरीकाक्ष पुनातु। उसके बाद त्रिराचम्य 3 बार जो है हम आचमन करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने अपने हाथों को धोएंगे। आचमन का जो जल है, जल हाथ में लेके इस प्रकार, और जो है आप हाथ इस प्रकार से धो लें। तदनंतर आप जो है आचमन करेंगे 3 बार। इसका भी जो है आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, जो 3 प्रकार के हमारे ताप हैं, उनके समन अर्थ एवं मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से हम शुद्ध हों, इसलिए जो है आचमन का महत्व बताया गया है। तो हम जो है 3 बार आचमन करेंगे। ओम हरि ओम। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा। ओम यजुर्वेदाय स्वाहा। ओम सामवेदाय स्वाहा। ओम अथर्ववेदाय नमो नमः। फिर जो है पुनः आप जो है अपने हाथ धो लीजिएगा। तदनंतर तिलक करने का विधान है। हमें जो है तिलक करना है स्वयं को, और अपने आसपास जो भी बैठे हुए हैं आपके परिवार के सदस्यगण, उन सभी को तिलक करेंगे। ओम भद्रमस्तु शिवम चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु अक्षतः सदा देवा अक्षतः पान्तु भवः दीर्घायुरस्तु चिरायुरस्तु धनधान्यरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु। तो तिलक करने का विधान, पहले जो है हम चंदन से, फिर उसके बाद रौली, और फिर अक्षत। चंदन जो है हमें शीतलता प्रदान करता है। हमारे जो हमारा जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य में है। तो आज्ञा चक्र को जो है शीतलता प्रदान करने के लिए जो है सर्वप्रथम चंदन जो है हम लेपित करते हैं अपने मस्तिष्क पर। तदनंतर जो है रोली का प्रयोग किया जाता है, और फिर अक्षत का। तो इस प्रकार से हम जो है तिलक करें। तिलक का भी इस प्रकार से महत्व बताया गया है, ये वैज्ञानिक महत्व है। उसके बाद तिलक करने के बाद आप जो है पृथ्वी देव, जो हमारे पृथ्वी देवी हैं, माता हैं, हमारी धरा है, हमारी भूमि है, उनको जो है विनियोग करेंगे। विनियोग का अर्थ होता है उसमें हम हमारे जो है कौन से मंत्र से लिया गया है, कौन उसके ऋषि हैं, तो ये उसका एक क्रमिक रूप आता है। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य, जल हाथ में ले लीजिएगा थोड़ा सा,
और जी, ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठऋषिः सुतलं छन्दः कुर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः। पृथ्वी पर ऐसे छोड़ दें और इस प्रकार से अपनी जो कनिष्ठिका जो अंगुली है उसको भूमि पर स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वयादिता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चाशनम्। ओम पृथ्वी देव्यै नमः आधार शक्तये नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सभी उपचारों को समन्वित करते हुए हम गंध अक्षत जो है पृथ्वी पर चढ़ाएंगे। पृथ्वी देव जहां पर जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं उस स्थान की आज्ञा लेनी बहुत आवश्यक होती है पूजन में। तो जो है हम उस पृथ्वी देवी का जो है हम पूजन करते हैं। ओम हरि ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहुवे श्रियम्। ओम पृथ्वी देव्यै नमः आधार शक्तये नमः। तदुपरांत हम जो है जो हमारे दीपक भैरव हमने यहाँ पे प्रज्वलित किए हुए हैं तो उन दीपक भैरव का जो है हम आवाहन करेंगे कि आप जो है हमारे पूजन में प्रकाशवान होएं और हमारे जीवन को भी जो है आप प्रकाशवान करें। तो ऐसे दीपक भैरव का जो है हम उनको भी जो है हम प्रणाम करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। ओम हरि ओम ओम करकलित कपालः कुंडली दंडपाणि तरुणतिमिर्नीलः व्याल यज्ञोपवीति ऋतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति वटुकनाथ सिद्धिद साधकानाम्। ओम श्री वटुक भैरवाय नमः। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी य विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भवः। आप कह रहे हैं कि वो दीप देव रूपस्तम, आप जो है दीप रूप में जो है यहाँ पर हे देवता अग्नि रूप में जो है आप यहाँ पर आए हुए हैं। वो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी या विघ्नकृत, आप जो है हमारे समस्त कर्मों के साक्षी हैं। कर्म साक्षी या विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात्, जब तक हमारे कर्म जो भी हम कर्म यहाँ पर कर रहे हैं, पूजन एक कर्म है, तो पूजन का जो कर्म हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको आप जो है जब तक यह कर्म हमारा चल रहा है तब तक आप इसको आप जो है प्रतिनिधि के रूप में जो है यहाँ पे स्थापित हैं। तो दीपक भैरव से आप इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ओम हरि ओम उनका पूजन करेंगे। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री दीपक भैरवाय नमः। तो इस प्रकार से दीपक पूजन हमारे द्वारा किया गया। तदुपरांत जो है हम स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे। स्वस्ति वाचन जो है कल्याणकारी वचन जो हमारे होते हैं, सभी के कल्याण के लिए जो वचन बोले जाते हैं उसे स्वस्ति वाचन कहा जाता है। तो स्वस्ति वाचन का पाठ हमारे द्वारा किया जाएगा। आप अपने हथेली में दाई हथेली में राइट हैंड में आप पुष्प अक्षत और जल ले सकते हैं। अगर इनका अभाव हो तो आप हाथ जोड़ के ऐसे विनती कर सकते हैं। शंख ध्वनि जो की जाती है हमारे द्वारा, यह शंख ध्वनि का भी महत्व है हमारे जीवन में। शंख ध्वनि जितने भी नकारात्मकता अलग अलग दिशाओं से आ रही है, उन दिशाओं से जो नकारात्मकता है उसको दूर करने के लिए शंख ध्वनि और
घंटा वादन जो है वो किया जाता है, जिससे कि नकारात्मकता दूर रहे, जो निगेटिव चीजें हमारी ओर आ रही हैं वो दूर हो जाएं पहले ही पूजन से पूर्व। इसलिए जो है शंख वादन और घंटी वादन किया जाता है। तो अब हम स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे। पुष्प अक्षत अपनी हथेली में रख लें। ओम हरि ओम। ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमृद्भिदै असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतां देवानां तुङ्गातिरभिनो निवर्तताम् देवानां गुंसख्यमुपसेदिमा वयन् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगम् मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिदम् अर्जमणं वरुणगुं सोममस्विना सरस्वती नः शुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातोभे खजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतन् दिष्णाजुवम् तमीशानं जगस्तस्तस्तु कसपतिं धियञ्जिन्वमवसे भूमहे वयम् पूखानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नोर्बृहस्पतिर्दधातु शिखदस्वामरुतः कृष्णीमातरः शुभञ्जावानो विदथे कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यैमाक्षविरजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवां गुंसस्तनोर्भृभ्यसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनोन्नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु तन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन स्वस्तस्य स्वकः सुभद्रिकां कान्तिलवासिनीम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अगर आपके पास अक्षत पुष्प हैं तो आप जो है थोड़ा थोड़ा जो है आप गणेश भगवान जी को चढ़ाएं। ओम हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। रिद्धि बुद्धि संहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। संपूर्ण पुष्प जो है अक्षत आप जो है
भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। उसके बाद गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करेंगे। ओम सम्मुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। द्वादशेतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अयुष्यतार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गंगणपतये नमः। ओम श्री विघ्न विनाशिने नमः। ओम श्री मां गौर्ये नमो नमः। इस प्रकार से हमारे द्वारा स्वस्ति वाचन का पाठ किया गया। स्वस्ति वाचन के पाठ के उपरांत भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। भगवान सूर्य को अर्घ देने का भी महत्व है, क्योंकि जब भी हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो आत्मिक बल है, क्योंकि भगवान सूर्य जो है वो आत्मा के कारक हैं, तो इसलिए हमारा जो आत्मिक बल है वो और सुदृढ़ होता है। सुदृढ़ का अर्थ होता है और स्ट्रांग होता है ना। तो हमें जो है जब भी हम पूजन करें तो भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। वैसे तो हमें प्रतिदिन जो है जब सूर्योदय हो, सूर्योदय से पूर्व की जो लालिमा होती है, उस लालिमा के बीच का जो समय है, उस समय जो है सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। परंतु जब भी आप पूजन कर रहे हो उस समय में भी आपको जो है भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो हम भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। आपके पास अगर आचमन हो तो आप आचमन से दे सकते हैं अर्घ। ओम हरि ओम ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मा भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकर दिवाकर मंडलाय नमः भास्कराय नमः श्री भानवे नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान सूर्य का पूजन, अब उनका ध्यान करेंगे। ओम ध्येयः सदा सवृतिमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्नविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर्घृत शंखचक्र। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री भास्कराय नमः। श्री भानवे नमः। श्री पूष्णे नमः। श्री तूष्णे नमः। श्री भास्कराय नमो नमः। तो भगवान भास्कर का आपने जो है ध्यान किया, उनको आपने अर्घ दिया, और इसी क्रम में आज का स्वस्ति संकल्प सभी जो है अपने हथेली में राइट हैंड में पुष्प अक्षत, अगर अवेलेबल हो तो आप पुष्प अक्षत रखें, अगर पुष्प अक्षत ना भी हो तो आप जल जो है अपने हथेली में रख सकते हैं इस प्रकार से। और तदनंतर आज का स्वस्ति संकल्प। ओम हरि ओम ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तांतर्गते दिल्ली नगर मध्ये सफदरजंग क्षेत्र स्थिते कृष्णा नगर क्षेत्र स्थिते। आपका जो स्थान है आप अपने स्थान का नाम ले लें। तथा च षष्ठी संवत्सराणां मध्ये राक्षस नाम संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे उत्तर गोल मंडलांतर्गते मासानां मासोत्तमे मासे शुभे माघ फाल्गुन मासे च अस्मिन् समये कृष्ण पक्षे अद्य अष्टम्यां शुभ पुण्यतिथो गुरुवासरे नुतायां च
सांडिल्य गोत्रोत्पन्नो हम, मैंने अपने गोत्र का उच्चारण किया है, आप सभी अपने अपने गोत्र का उच्चारण करें, अपने नाम का उच्चारण करें एवं अपने परिवारजनों के सभी का नाम का उच्चारण करें, उनकी राशियों का नाम का उच्चारण करें, जो जो राशियां हैं उन राशियों को भी उच्चारित करें। तो तथा च वत्स गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमन्तः गुरुवर्यः योगीराज महोदयस्य तथा च ऋतान्वेषी संस्थानस्य कल्याणाय तथा च सर्वविध कल्याणाय अस्मिन् समये एतद् प्रधान रूपेण सपरिवार सकुटुंब श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति हेतवे अखंड लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त्यर्थम आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिविध ताप समनार्थम तथा च सर्वेषां कुंडल्यां मध्ये जन्म कुंडल्यां लग्न कुंडल्यां चतुर्थांश कुंडल्यां षोडशांश कुंडल्यां द्वादशांश कुंडल्यां मध्ये सर्वे ग्रहाः अनुकूलाः एव भवेयुः तथा च सूर्य चंद्र भौम बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाः सर्वेषां कृते अनुकूलाः एव भवेयुः तथा च राश्यानां मध्ये मेष वृक्ष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन एते द्वादश राश्याः सर्वेषां कृते अनुकूलाः एव भवेयुः तथा च नक्षत्राणां मध्ये अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुन उत्तरा फाल्गुन हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाखाड़ा उत्तराखाड़ा धनिष्ठा सद्विषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती अष्टाविंशति नक्षत्राः यजमानस्य अनुकूलाः एव भवेयुः तथा च योगानां मध्ये सप्तविंशति योगाः सर्वेषां कृते अनुकूलाः एव भवेयुः करणानां मध्ये एकादश करणानि सर्वेषां कृते अनुकूलाः एव भवेयुः तथा च अस्मिन् समये एतत् प्रधान रूपेण सर्वप्रथमं गौरी गणपति पूजन क्रमांगत्वेन तथा च ब्रह्मा विष्णु महेश पूजन क्रमांगत्वेन तथा च षोडशमातृका पूजन क्रमांगत्वेन अस्मिन् समये तत् प्रधान रूपेण श्री महादेव विश्वेश्वर केदारेश्वर पूजन क्रमांगत्वेन अस्मिन् समये एतद् संकल्पम, बोलिए मम द्वारा, सभी बोलेंगे मम द्वारा एतद् संकल्पम सर्वविध कल्याणाय, सर्वविध कल्याण का अर्थ होता है सभी के कल्याण के लिए, सर्वविध कल्याणाय एतद् संकल्पम मम द्वारा तथा मम सपरिवारस्य द्वारा च इति करिष्यामहे। ओम जजाग्रतो दूरमुदेति देवन्त दुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस बात पे शायद कल भी जब हमारी वार्ता चल रही थी सायंकालीन, तो मेरे द्वारा बताया गया था कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर जो हैं वो ध्यान के देवता कहे गए हैं। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। कहा गया है कि जो ओमकार रूप है भगवान शंकर का, जो लिंग रूप है भगवान शंकर का, वो एक स्वरूप है, उनका एक आकार है। कल गुरुजी ने भी इस बारे में चर्चा करी थी। तो भगवान का जो एक स्वरूप बनता है वो एक लिंग के रूप में है, और जब हम उसको उच्चारित करते हैं तो वो ओंकार के रूप में है, जो कि सभी हर प्रकार के कल्याण के लिए हैं। और भगवान शंकर अपने आप में ही उनको महादेव की उपाधि प्राप्त है। महादेव का अर्थ होता है जो सभी देवों में जो उत्कृष्ट हो, सबसे उच्च स्थान जिनका हो, वो है महादेव। तो हमें हर प्रकार से ध्यानस्थ होकर उनकी पूजा को करना चाहिए। किसी भी प्रकार का विकार हमारे मन में ना हो। कल गुरुजी ने 5 नियम बताए थे, उन्हीं 5 नियमों को आप जो है फॉलो करें और पूजन को विधिवत तरीके से करें एवं
आप जो है अनुभव करें। क्योंकि पूजन को हम भगवान को बहुत सारी चीजें चढ़ानी होती हैं, परंतु जब तक हमारा भाव जब तक अंदर से जागृत नहीं होता है, तब तक उस पूजन का कोई भी किसी भी प्रकार का महत्व नहीं है। कहा भी गया है कि भावाधीनम तो देवता। भाव भाव के भगवान जो है भाव के भूखे हैं। पूजन हम बहुत सारी मंत्रों से कर सकते हैं, बहुत सारे उपचारों, षोडशोपचार, पंचोपचार, बहुत सारे उपचारों से कर सकते हैं, परंतु जब तक भाव जागृत नहीं होता तब तक हमारा पूजन निष्फल है। तो इसलिए जो है हमें अपने भाव को जागृत करना चाहिए और समाज में भी यह उपदेश देना चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने वचन को, अपने कर्म को हम इस प्रकार से सुदृढ़ बनाएं कि उस परम तत्व की प्राप्ति जो है हमें हो पाए। तो अधिक वार्ता न करते हुए आगे का पूजन जो है हम सुचारू रूप से करते हैं। सबसे पहले जो है गणपति जी का ध्यान करेंगे, जो कि सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम् इखन्निखाणम् उम्मैखाण सर्वलोकम् इखाणः। ओम श्री गणपतये नमः। श्री गौर्यै नमः। तदनंतर ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जो है हम पूजन करेंगे क्रमशः। पुष्प अक्षत जो भी आपके पास उपलब्ध है आप अपने हथेली में रखें। ओम हरि ओम ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विशीमतः सुरुचो वेन आवह सुभद्या उपमा अशिष्टाः सतश्च योनिम सतश्च विवः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री ब्रह्मणे नमः। भगवान विष्णु जी का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम श्री रामचंद्राभ्याम नमः सपरिवाराभ्याम नमः। ओम श्री विष्णवे प्रभ विष्णवे नमो नमः। उसके बाद जो है भगवान शंकर का ध्यान करेंगे, जो कि सभी अनिष्टों को दूर करने वाले होते हैं, सभी पापों का विनाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर का हम जो है विशेष रूप से, क्योंकि आज से हम उन्हीं के निमित्त पूजन कर रहे हैं, तो उनका आज विशेष ध्यान। ओम हरि ओम ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमिगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। इस प्रकार से हमने भगवान शंकर का ध्यान किया।
भगवान शंकर के अधीन कहा जाता है कि सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र जो हैं 28 नक्षत्र जो होते हैं भगवान शंकर के मस्तिष्क में विराजमान है, क्योंकि चंद्र जो है भगवान शंकर के मस्तिष्क में विराजमान है, और चंद्र के ही पत्नी स्वरूप जो है, भार्या स्वरूप जो है 28 नक्षत्रों को माना गया है। तो भगवान शंकर के अधीन ही सारे नक्षत्र, सारी सृष्टि जो है वो समाहित है। निराकार रूपम शिवोहम शिवोहम कहा भी गया है कि इनका निराकार भी रूप है और साकार भी रूप है। और शिवोहम, ये जो कल्पना है कि शिवोहम, मैं ही शिव हूं, तो ये कल्पना अपने में तभी विकसित हो सकती है जब हम उस स्वरूप को जानें, स्वरूप को समझें, जानने की कोशिश करें, तो तभी जो है वह साकार रूप हमें कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होगा हमारे मन के, हमारे हृदय के भीतर। तो इस प्रकार से हमने भगवान शंकर का ध्यान किया, उनका आवाहन किया, उनका स्थापन करेंगे। ओम हरि ओम। अक्षत हैं तो अक्षत आप ले सकते हैं जहां पर भी मंदिर के स्थान में आप बैठे हुए हैं। और अगर आपने पार्थिव शिवलिंग, जो गुरुजी ने आपको बताया था कि डेली जो है आप पार्थिव शिवलिंग जो है बनाएं, अगर आपने निर्माण किया हुआ है तो आप उनकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं अक्षतों से। ओम हरि ओम। ओम मनो ज्योतिर्जुखतामा जैसे बृहस्पतिर्जगमिमं तनु त्वरिष्टं जगगुं शमिमं दधातु विश्वे देवास इयमादयन्तामो प्रतिष्ठ सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री केदारेश्वराय नमः। श्री त्र्यंबकेश्वराय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान शंकर की प्रतिष्ठा हुई। यहाँ पे भगवान शंकर के लिंग रूप यहाँ पर रखा हुआ है और उन्हीं का जो है हम विधिवत यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो इस क्रम में अब जो है हमारा स्नान का क्रम आता है। सभी देवी देवताओं का नाम हमारे द्वारा लिया गया है, उनका आह्वान किया गया है। अब जो है हम स्नान कराएंगे। ओम हरि ओम। ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं सर्वांगी स्नानीयं च इति समर्पयामि। 4 बार जो है हम भगवान का स्नान कराते हैं। पाद्योपाद्यम समर्पयामि यानी कि उनके चरणों का स्नान, हस्त्योर अर्घ्यम समर्पयामि, हस्त से उनके हाथों का स्नान, अर्घ्य हस्त्योर अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम, आचमन उनको कराते हैं, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, सर्वांगीण स्नानम समर्पयामि, सभी अंगों का जो है उनके स्नान हम कराते हैं। यह भाव का विषय है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, पूजन का कर्म कर रहे हैं, यह संपूर्ण भाव पर आधारित है। जब तक हमारा भाव भगवान के प्रति समर्पित नहीं है तब तक हमारे सामने वो केवल एक पत्थर की मूर्ति है। परंतु जब हमारे भाव जागृत होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो भाव है वो भगवान के प्रति जागृत होता है और वही भाव हमें फल देने वाला भी होता है। तो इसी क्रम में आगे जो है पंचामृत स्नान कराएंगे। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति शस्त्रोतशः, सरस्वती तु पंचधासु देशे भवत्सरितः, पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं, शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवालस्ताश्विनः, श्वेतः श्वेताक्षो ऋणस्ते पशुपतये, कर्णाज्याम अवलिप्ता न भूरूपा पार्जन्याः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः।
शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते। तो हमने शुद्ध जल से भगवान शंकर जी का जो है स्नान कराया। शुद्ध जल के उपरांत आत्मनियम जलम समर्पयामि, आत्मनियम जल भी हम जो है चढ़ाएंगे। तथा च चंदनम, पहले सर्वप्रथम हम जो है उनको वस्त्र इत्यादि जो है वो चढ़ाएंगे। वस्त्राभावे पुष्पाक्षतानि चेति समर्पयामि। तद उसके उपरांत गंध से लेपित उनको करेंगे, त्रिपुंड उनको लगाएंगे। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्री त्र्यंबकेश्वराय नमः। इस प्रकार से गंध, रोली और अक्षत जो है हमने भगवान शंकर को चढ़ाया। तदनंतर कहीं ना कहीं उनके पूजन में ये जो विधियां हैं, इन विधियों, ये जो विधि चल रही हैं, ये षोडशोपचार के अंतर्गत आती हैं। 16 प्रकार के उपचार हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये विधियां चल रही हैं। ओम हरि ओम। तदनंतरम ओम या फला निर्या फला पुष्पा जाश्च पुष्पणि त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान क्षमादमुच्यत। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं, जो है हम भगवान शंकर को जो है भोग लगा रहे हैं कि वह जो है संपूर्ण भोग को स्वीकार करें। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्षोऽध्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वे प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियताम्। हम उनको तांबूल चढ़ा रहे हैं, तांबूल पुंगी फल। ओम पुंगी फल महदिव्यम नागवल्लीर्दलेर्युतम ऐलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। तांबूलम पुंगी फलम चेति समर्पयामि। उसके बाद हम जो है अभ्रक भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त जत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बिल्व पत्र भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए जो है हम भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाएंगे। ओम बिल्मिने च कवचिने च वरुथिने च नमः सुताय च सुतसेनाय च दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमः। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। बिल्वपत्रम समर्पयामि। भगवान शंकर को भस्म बहुत प्रिय है, तो उन्हें हमारे द्वारा भस्म भी चढ़ाया जाएगा। ओम त्रायुखम जमदग्निः कश्यपस्य त्रायुखम अस्तु त्रायुखम। ओम श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। भस्मानुलेपनम समर्पयामि। तो इस प्रकार से भगवान शंकर को हमने जितने भी प्राकृतिक वस्तुओं से उनका पूजन किया जाता है, वो हमने भगवान शंकर को चढ़ाए। एवं इसी क्रम में भगवान का जो है हम क्षमा प्रार्थना उनसे मांगेंगे कि हमारे द्वारा जो भी
किसी भी प्रकार का अगर कुछ क्रम रह जाता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी मांगी जाती है। ओम आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवं पाहि मां सर्वदा माता सर्वपापहरो हर सर्वदुःखहरो हर सर्वकष्टहरो हरः। यह जो क्रम है पूजन का, यह क्रम हुआ। अभी जो है भगवान शंकर के 16 मंत्रों का उच्चारण हम करेंगे। तो सभी के पास शायद पीडीएफ रोशन जी के द्वारा भेजा गया है। सभी अपना मोबाइल में जो है पीडीएफ में जो है आप देख सकते हैं। मंत्र का उच्चारण यहाँ से मेरे द्वारा कराया जाएगा, आप भी जो है उच्चारण करें। तो अभी जो है आप अनम्यूट कर सकते हैं, जिससे मुझे भी पता लगे कि उच्चारण किस प्रकार का हो रहा है। जहाँ पर मुझे त्रुटि लगेगी तो मैं आपको इंगित करता रहूंगा। ठीक है रोशन जी? जी शंभू जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी जी। और तो आप वो कल हमने पीडीएफ शेयर कर दिया था, वो पीडीएफ अभी आप रुद्राष्टाध्यायी का निकालें और उसी जी के जी, साथ जो आचार्य जी हैं वो हमें कराएं। पहला मंत्र है, प्रथम मंत्र ओम। ओम का उच्चारण करेंगे सभी। ओम ओम नमस्ते नमस्ते रुद्रमन्यव रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः उतोत इखवे नमः बाहुभ्यां नुतते नमः। बाहुभ्याम उतते नमः। बहुत अच्छे। अगला मंत्र है जाते रुद्र शिवा। जाते रुद्र शिवा। देखिए जो या है, यहाँ पे वैसे या लिखा हुआ है, आप कह रहे होंगे जा कैसे पढ़ रहे हैं। तो वेद में य को जौ पढ़ा जाता है ना। वेद में जो है य को जौ पढ़ा जाता है, तो इसलिए जो है जाते रुद्र शिवा। करिए करिए उच्चारण करिए। शिवा तनूर घोरा तनूर घोरा आप काशिनी आप काशिनी तयानस्तन्वा तयानस्तन्वा संतमया संतमया गिरिसंता गिरिसंता विचाकशीहि। चाकशी। अब इसको अगर हम संपूर्णता में पढ़ें तो जाते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशिनी दयानस्तन्वा संतमया विचाकशीहि। तो ये सेकंड मंत्र हुआ। अगर जी जी, अगर हम डेली हम इसका उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं हम फिर हमारी जिह्वा जो है धीरे धीरे जो है उच्चारित करने लगेगी, है ना। शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है क्योंकि संस्कृत है, तो संस्कृत में हर किसी का जीव जो है वो चलायमान नहीं रहता। चलो अगला जो है मंत्र हम पढ़ते हैं जामिखुं गिरिसंत जामिखुं गिरिशांत हस्ते ते विभर विभर खस्तवे विभर विभर खस्तवे। यहाँ पे जो है सौ को ख पढ़ा जाता है। जो आपको आधा सौ दिख रहा है ना, मूर्धन्य स, उसको जो है ख पढ़ा जाता है वेद में। तो ये वैदिक
उच्चारण है, विभर इसमें जो है लेट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे वेदों में लेट लकार का प्रयोग अधिकांश हुआ है। लकार होते हैं 10 लकार हमारे संस्कृत में, तो उनमें से लेट लकार का प्रयोग जो है वो वेद के लिए किया गया है अधिकांश। तो दोबारा रिपीट करेंगे इसी मंत्र को। जामिखुं गिरिसंत जामिखुं गिरिशन्ति हस्ते विभर्खस्तवे हस्ते विभक्तवे शिवां गिरित्रताम् शिवां गिरित्रताम् शिवां गिरित्रताम् शिवां गिरित्रताम् गुरुमाहि गुरुमाहि गुं, यहाँ पर गुं का प्रयोग किया गया है। वो जो आप ऊपर वैसे यहाँ पे किया नहीं गया है अच्छे से, परंतु जो ऊपर जो आपको दिख रहा है अर्धचंद्राकार ही के ऊपर, उसे गुं कहते हैं। हिमाहि गुं हिमाहि गुं शीहि शिहि पुरुखं जगत। पुरुखं जगत। देखिए जब जगत में जो है अ इसमें सम्मिलित नहीं है, जो अंतिम वर्ण है त, उसमें जो है अकार नहीं है, तो इसलिए उसको हम आधा ही पढ़ेंगे, जगत। जगत नहीं पढ़ेंगे, जगत मतलब केवल त का उच्चारण आना चाहिए, अकार का उच्चारण उसमें नहीं है। देखिए अगला श्लोक, अगला जो मंत्र है, शिवेन वचसा त्वा शिवेन वचसा त्वा शिवेन वचसा त्वा शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्छा गिरिशाक्षा वदामसि म्यूट है क्या अनम्यूट है? वदामसि यथा नः यथा सर्व सर्व मी जगद्यक्ष्म मी जगत यक्षम सर्वमि जगद्यक्ष्म सर्वमि सर्वमि जगतक्षम गुं सुमना असत सुमना असत। असत। जी, एक बार संपूर्ण मंत्र को एक बार आप सुन लें। शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमि जगद्यक्ष्म सुमन गुं सुमना असत। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। अगला जो मंत्र है, अद्यवोचदधिवक्ता अद्यवोचधिवक्ता प्रथमो दैव्यो प्रथमो दैव्यो ईखक विखक अहिंश्च सर्वान् अहिंश्च सर्वान् जम्भयञ्च सर्वान् जम्भयन्त सर्वान् सर्वांश्च जातु धान्यो धराचीः सर्वांश्चातुधान्योधराचिः पराशुव। जी, एक बार आप संपूर्ण उच्चारण सुन लें। ओम अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विखक अहिंश्च सर्वान् जम्भयञ्च सर्वान् च जातु धान्यो धराचीः पराशुव। इस प्रकार से इस मंत्र को बोलेंगे। अगला मंत्र देखिए आप। ओम असोजस्ताम्रो असोजस्ताम्रो ओम असोजस्ताम्रो असोजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः अरुण उत बभ्रुः सुमंगलः सुमंगलः
ये चैन गुं ये चैन चैन गुं रुद्रा रुद्रा अभितो 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 दिक्षु श्रिताः दिक्षु श्रिताः सहस्रशो 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 वैखागुं वैखागुं एड ईमहे। एड ईमहे। जी एक बार जो है आप संपूर्ण उच्चारण इसका सुन लें। ओम असो जस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमंगलः जय चैनगुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः उद्दैनं गोपा दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैखागुं एड ईमहे। तो ये इस प्रकार से उच्चारण करें। अगला श्लोक आप मंत्र आप देखें, 7 मंत्र। ओम अशोजो ओम अशोजो असोजो वसर्पति 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 नीलग्रीवो विलोहितः नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा उतैनं तेनं गोपा अदृशन् 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 नुदहार्यः उदार्यः नुदहार्यः नुदहार्यः उदार्यः सदृष्टो मृडयादिनः। सदृशो मृडयादिनः। जी अब आप पूरा मंत्र सुन लीजिए। ओम अशो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन् उदहार्यः सदृष्टो मृडयातिनः। इस प्रकार से इस मंत्र को उच्चारित करेंगे। अगला मंत्र देखिए 8th नंबर। ओम नमोस्तु नमोस्तु नीलग्रीवाय नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे सहस्राक्षाय मीडुखे अथोजे अस्य सत्त्वानो अस्य सत्त्वानो अशोजे अस्य सत्त्वानो सतानो हन्तेभ्यो हन्तेभ्यो करन्नमः। नमः। एक बार पूर्ण मंत्र सुन लीजिए। ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे अथोजे अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करेंगे। अगले मंत्र पर हम चलते हैं 9th मंत्र पे। ओम प्रमुंच धन्वनस्त उभयोर्रात्न्योर्जाम मुभयोर्रात्न्योर्जाम्य याश्चते हस्त इखवः पराता भगवो वप। जी एक बार संपूर्ण मंत्र सुन लें। ओम प्रमुंच धन्वनस्तमुभयोर्रात्न्योर्जाम्य याश्चते हस्त इखवः पराता भगवो वप। नेक्स्ट मंत्र। ओम विजयन् धनुः
ओम ॐ विद्युत धनुः कपर्दिनो कपर्दिनो विशल्यो विशल्यो बाणवा उत वाह। एक महानुभाव ने बहुत ही अच्छे से इसको उच्चारित किया। बाणवा उत ओम अनेशनस्य ओम ॐ अनेशनस्य या इखव या इखव आभूर जी जी आभूरस्य आभूरस्य निखंगधिः। एक बार सुन लीजिए। ओम विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अनेशनस्य जा इखव आभूरस्य निखंगधिः। ये हो गया। नेक्स्ट मंत्र पे जाते हैं। 11 मंत्र। जातिर्हेतिर मीडुष्टम अस्ते बभुवते धनुः त्रयास्मान् विश्वतस्त्व मयक्ष्मया परिभुज। एक बार सुन लीजिए। जाते हेतिर्मिदुष्टं हस्ते बभुवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज परिभुज। ठीक है। नेक्स्ट मंत्र पे चलते हैं। ओम अवतत्य धनुष्ट्व सहस्राक्ष सते खुदे सते खुदे। देखिए मूर्धन्य सौ को ख पढ़ा जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सहस्त्राक्ष सते खुदे निशीर्ज निशीर्ज शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। एक बार सुन लीजिए। ओम अवतत्य धनुष्ट्वगुं सहस्राक्ष सते कुधे निशीर्ज शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। जी अगला मंत्र देखें। जी बताइए। पंडित जी क्षमा चाहूंगा, एक वर्ष 12वां अभी नहीं उच्चारित कराया गया। परिम ते धनवनो 12वां सूत्र कह रहे हैं। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा आपने ठीक किया। एक मिस हो गया मंत्र है ना। हाँ चलो इसका उच्चारण कर लेते हैं। ओम परिते धन्वनो एतिरस्मान् गृणक्तु विश्वतः अखो अथोज ईखुधिस्तवारे अस्मिन् निदेहितम्
अस्मिन् निहितम् अस्मिन् निधेहितम् अस्मिन् निहितम् जी एक बार उच्चारण सुन लें। ओम परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अखो अथोज इखुदिस्तवारि अस्मिन् निधेहितम्। ठीक है, ये हो गया था 13 नंबर। जी जी 14 नंबर पर चलते हैं। ओम नमस्त आयुधाय ओम नमस्तायुधाय नातताय नाथाय कृष्णवे कृष्णवे उभाभ्यां मुतते नमो नमो बाहुभ्यां तव धन्वने धन्वने एक बार संपूर्ण उच्चारण को सुन लें। ओम नमस्त आयुधाय नातताय कृष्णवे उभाभ्यां मुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। जी 15th मंत्र आप देखेंगे। ओम मानो महांत मुतमानो मानो अर्भकं मान उक्षन्त मुतमान मुतमान न उक्षितं तम मानो वधिः मानो वदेः पितरं मोतमातरम् मातरम् मानः मानः प्रियास्तन्वो प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः उच्चारण सुने एक बार, बहुत अच्छा। ओम मानो महांत मुतमानो अर्भकं मान उक्षन्त मुतमान उक्षितं मानो वधिः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः। इस प्रकार से। नेक्स्ट है 16 मंत्र। ओम मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोखु मानो अश्वे खुरीरिखः मानो अश्वे खुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो वधिर्हविकमन्तः सदमित्वा हवामहे। एक बार सुन लें। ओम मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोखु मानो अश्वे खुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो वधिर्हविकमन्तः सदमित्वा हवामहे। तो इस प्रकार से
ये षोडश मंत्र जो है, जिसे लघु रुद्राष्टाध्यायी भी कहा जाता है ना, लघु रुद्राष्टाध्यायी भी कहा जाता है। इस प्रकार से यह मंत्र जो है, ये मंत्र हमारे द्वारा बोले गए हैं और इनका उच्चारण किया गया है। तो डेली अगर हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो हम धीरे धीरे इन मंत्रों का उच्चारण अच्छे से करना प्रारंभ कर लेंगे। तो सबको अच्छा अनुभव हुआ होगा इन मंत्रों से। जी रोशन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी। And I would like to say that Team Ritanveshi is feeling very happy to see all you performing the Vedic rituals together. बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देखते हुए कि इन वैदिक रिचुअल्स को हम सभी एक साथ बैठ करके कर रहे हैं। और अब जो है हमारी जो पूजन की विधि है वो समाप्त हो गई है और रुद्राष्टाध्यायी, लघु रुद्राष्टाध्यायी के 16 मंत्रों का पाठ भी हम सभी ने कर लिया। And I hope that you are all having your mala, either Rudraksh or Tulsi mala with you for Mahamrityunjay mantra chanting. So now we will continue 10 to 15 minutes Mahamrityunjay mantra chanting for 108 times. And Acharya Shambhu ji will lead us. He will chant and we will chant all together. और अभी आप सभी अपने आप को म्यूट कर सकते हैं या अनम्यूट भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखें, अनम्यूट भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बस आसपास आवाज ना हो। और एक साथ हम महामृत्युंजय मंत्र का करेंगे उच्चारण। पहले मैं चाहूंगा कि आचार्य शंभू जी 2 से 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कैसे हम करने वाले हैं, किस गति में करने वाले हैं और किस प्रकार का उच्चारण करने वाले हैं उसको बता दें। और तत्पश्चात हम सभी एक साथ, आप जहां भी हो किसी ध्यानात्मक आसन में आ जाएं, चाहे वो सुखासन हो, चाहे वो अर्ध पद्मासन पद्मासन हो, किसी भी ध्यानात्मक में आसन में आए। और अगर माला हो तो और अच्छा है। और अब मैं शंभू जी से अनुरोध करूंगा कि वो एक बार 2 से 3 बार हम सभी को उच्चारण बताएं और उसके बाद हम सभी एक साथ उसका उच्चारण करेंगे। आचार्य शंभू जी। एक निवेदन और सबसे करना चाहूंगा, क्योंकि हम सभी एक साथ उच्चारण कर रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र का, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर हम सभी अपने वीडियोस को भी ऑन कर लें, तो आप सभी को हम देख भी पाएंगे कि आप सभी साथ साथ उच्चारण कर रहे हैं हमारे साथ। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपनी वीडियोस को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद जी शंभू जी। जी ये रोशन जी, तानपुरे की आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल ठीक बहुत है। हल्की आ रही है पंडित जी, थोड़ा सा अगर ओके ओके बढ़ा ओके पाएंगे ओके। वॉल्यूम। जी जी जी। एकदम हल्का बढ़ा दीजिए, बाकी ठीक। जी हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, जी perfect। जी। तो ये माला है, इसको थोड़ा जल से माला का स्नान कराएंगे इस प्रकार से। ये जो ऊपर का जो ये धागा है यहाँ पे, अगर जिसके पास माला है वो इसको करें, नहीं तो मन से भी आप उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। और इसको दोनों नेत्रों पर स्पर्श करें जल को। ओम महामाल्ये, ओम मामाल्ये महामाल्ये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तत् तस्मान्मे सिद्धिदा भवः। ओम श्री अक्षमालाधिपतये नमः। अब जो है हम त्र्यंबक महामृत्युंजय का जो मंत्र है, जिसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में ही निस्तरित होता है और कहीं ना कहीं हमारी एक ऊर्जा का स्रोत है, महामृत्युंजय ऊर्जा को प्रदान करने वाला है। तो इसलिए हमें प्रतिदिन महामृत्युंजय का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् 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 मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव उर्वारुकमिव बन्धनान् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव 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 बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मियो वन्दनान् 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 मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ गुह्याति गुह्यगोप्तितं गृणास्मत्तं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसाद परमेश्वर। तो इस प्रकार से हमारे 108 सभी की माला कंप्लीट हो चुकी है या कोई रह गए हैं अभी? जी हो गई। तो आज बहुत ही सुंदर तरीके से सभी ने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से भगवान शंकर का पूजन अर्चन विधिवत बहुत ही विधिवत किया और इसी प्रकार पुनः कल प्रातः हम सभी इसी प्रकार से पूजन के क्रम में मिलेंगे और अभी रोशन पाठक जी की ओर हम चलते हैं और सभी को जो है भगवान शंकर सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही हम परम पिता परमेश्वर भगवान श्री शाम्ब सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्थिति में आप बैठे 5 मिनट के लिए और आंखों को बंद ही रखें, शरीर को एकदम सीधा कल आदिदेव महादेव की आज्ञा चक्र पर
धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। तेजी के साथ दोनों हाथों को रगड़ें आपस में और दोनों हाथों को अपने चेहरे पर लगाएं। एक बार शंभू प्रसाद मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के पूरे अभ्यास सत्र के लिए, और आप सभी को भी हृदय से धन्यवाद आज के सत्र में जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से क्रमबद्धता हमारी रहेगी अभ्यास क्रम में, और आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार अगर आप सभी अपनी वीडियोस को ऑन कर लें तो हम सभी आप सभी की एक फ़ोटो लेना चाहेंगे आज के पहले अभ्यास क्रम में और आपके साथ साझा भी करना चाहेंगे। तो केवल 1 मिनट के लिए सभी अगर अपनी वीडियोस को ऑन कर लें। जी। सभी को प्रणाम। गुरुदेव अगर 2 मिनट कुछ कहना चाहें सभी से तो मैं अनुरोध करूंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और इसी प्रकार से आप सभी लोग नियमित अभ्यास करें ताकि शिवरात्रि के दिन हम लोग महासाधना कर सके। विशेष रूप से पंडित जी को बहुत बहुत नमन। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा पूजा का कार्यक्रम रखा और पंडित जी के आशीर्वाद आप सब लोगों को मिले। इसी प्रकार से हम लोग साधना करते रहे। जो मंत्र आज कराए गए, जो भी लघु रुद्री पाठ आप लोगों ने किया, उसको आप लोग दिन में भी एक बार अभ्यास कर लें ताकि कल जब हम लोग उसको करें तो पूरे सही उच्चारण के साथ उसको हम लोग कर सके। आप लोग एक बार उसको दिन में कभी 1-2 बार दोहरा लीजिएगा और फिर शाम में हम लोग आज 7 बजे पुनः हम लोग सब लोग मिलेंगे और अपनी साधना को इसी प्रकार से आगे भी बढ़ाएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी, सभी को धन्यवाद। और अब आप सभी लीव ले सकते हैं आज के सेशन से। आपको शाम को हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव।